Welcome you all for the class. Good morning, everyone. So I could see your enthusiasm, children. So we are here for chapter 2, whole numbers, session 2. Okay. And last time we discussed about the definition of whole numbers. So as you all know, whole numbers are starting from 0, 1, 2, 3 onwards. That is when in natural numbers we add 0 to it, the group named as, right? So welcome you all again, and here we are going to learn more properties of whole numbers today. So let's see how to do that. Last time I just gave you the concept of number line. So here, first of all, we'll go back to the number line questions. Okay. So when we draw the number line, okay, see, basically what is a number line? When you say the word number line itself, it gives you the suggestion line. So it shows with double arrow, like, arrows on both the sides. That means that it could be extended. In your textbook, you are also given, because you are taking it as a whole number line, isn't it? It's a whole number line. Like for whole numbers, we are representing to 9. So we could take 1 and as 0, because it is the starting point, right? So when it's a starting point, we could show it 1 with the end, and here this side arrow shows that the number goes on growing up bigger and bigger. Similarly, for natural numbers, you can show 1 here as the starting point, and then the other side it has to be end. Please remember this. Both the side arrow. Now you have to draw like this. Either both the side arrow is okay, correct. If not that, you can use the point at one side, and on the other side it would be used as arrow, which shows that the number grows on, right? Okay. And now you are familiar with the number line concept for natural numbers. The same concept is followed here. What does it say? That as you move on the right hand side, okay, if I take the numbers, this goes 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So you know that if you are going towards right hand side, it follows your hands side as right side and left side. Okay. So if this is my right hand side here, so if I go to the right hand side, what could we see that the numbers becomes bigger and bigger? Okay. So 1, you can see the right side number is 2. So 2 is obviously greater than 1. Then 3, which is obviously greater than this. 4 is obviously greater than this. Okay. 5, and so on. So that means we conclude this way, that as we go on the right hand side, the numbers becomes bigger, and on the left hand side of any specific number, if we check, the left hand side shows the smaller number than the given number. For example, I'm just taking a part of it. Say it is 4, 3, 5. Okay, so if I go on the right hand side of 4, 3, 5, I would get all the numbers which are bigger than 435. And if I go to the left hand side of 435, I get all the numbers which are smaller than. Like for example, 435. So the previous number is 434, 433, and so on here and so on here. So I hope it is clear to you. As we go or as we move on the left hand side, we get the numbers which are smaller, and as we move on the right hand side, we get the numbers which are bigger, or vice versa. मतलब कि इसका reverse statement है, वो भी true है. क्या है कि since the number is on the left hand side, so if I'm talking about a specific number, say 434, and say here it is 469. Okay, so if I have to compare 435 and 469, so I could say what is the reason? Like reason since 469 is on the right hand side of 435. So naturally 435 is smaller, or 469 is bigger or greater. I'm repeating my statement. See, I know the concept is understood by you well, because it is same as natural numbers concept, but how to represent this, आपका बहुत बार confusion होता है that आपको किस तरीके से करना है. Okay,
लिखना, mainly writing purpose. I have seen many of the students are very good with math, but when it comes to some expressing, like some expression of the things, it goes bit harder. Like maybe like connecting with the language. तो जैसे आपने बताया जैसे छोटी क्लास में थे तो आप हिंदी सीखते थे, तो आप क्या करते थे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, या तो आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप इंग्लिश समझने के क्या करते हो, अच्छा इसको हिंदी में ऐसे करते हैं तो उसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, और आप चीजें याद रखते थे, isn't it? ओके, जैसे आप अभी नई लैंग्वेज सीखोगे संस्कृत, तो संस्कृत में कैसे होता है, आप अभी नया संस्कृत सीखोगे तो नेचुरली आपको टीचर कैसे समझाएंगे, आपको हिंदी या इंग्लिश की मीनिंग को हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका प्रयोग करना, राइट? तो उसी तरीके से मैं इसको कहूंगी कि हम मैथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो कैसे, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सिंपली लुक एट दिस, जैसे कि ये आपको एक नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ की हुई है, तो मैं कहूंगी कि नाउ डिस्क्राइब, ठीक है, या तो आप इसमें से क्या बता सकते हैं, इसके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मैं 3 से 4 स्टेटमेंट इस पे बना सकती हूँ। तो प्लीज रिमेंबर, बिकॉज वी आस्क यू, नोबडी विल आस्क यू कि चलिए डिस्क्राइब कीजिए, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट्स बन सकते हैं। हम हर चीज को लिख के या टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? कि टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे आंसर आएगा। अब आप 6th में आ चुके हो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है पता है? कुछ नया नहीं है, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपके दिमाग को डेवलप करना है। जैसे हम एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग बन लेते हैं, हम बड़े हो रहे हैं, राइट? यू ग्रोइंग अप, तो व्हाट डू वी डू? आप क्या करोगे, आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई हैव टू बी फिजिकली फिट, तो उसी तरीके से मेंटल फिटनेस या मेंटल स्ट्रेंथ का एक है कि यू सॉल्व द पजल्स। आप जो एक सिंपल आपको सेंटेंस दिया है तो आप समझ जाते हो, बट इफ द सेंटेंस इज गिवन एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर भी आपको उसका मतलब समझ में आए, कुछ ट्विस्ट करके आपको कुछ बोला जाए तो आप उसका मीनिंग समझ जाते हो। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल। तो इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और इसके लिए आपके लिए टेस्ट भी होंगी, आगे एग्जाम्स भी होंगे, अपार्ट फ्रॉम योर मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड योर एग्जाम्स। पीसा करके है जो कहता है कि आपका जो असेसमेंट किया जाएगा इट इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका मैथ्स आपको कोई नया नहीं सीखना है, आपको सिंपल आपके जो प्रीवियस मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, बट उसको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, या तो एक जैसे मैंने पहले भी कहा एप्लीकेशन, ओके, कोई भी चीज को हमें पता चला उसको अप्लाई करना, ओके, रियल लाइफ सिचुएशन में, उसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, मुझे पता है 2+3=5 होता है, राइट? बट जब मुझे कोई काउंट करने के लिए मुझे कुछ चीज खरीदने जाना है, तब मैं अपना मैथ्स का नॉलेज यूज करती हूँ। ओके, 2+3=5, ओके। जैसे कि मैंने टाइम के क्वेश्चन पढ़े हैं, एंड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मुझे कोई कहेगा ओके, हम अभी जैसे बात कर रहे हैं 11:09 हो रहे हैं, कोई मुझे कहेगा 3 आवर्स के बाद हम मिल रहे हैं, तो आई हैव टू कंक्लूड, ओके 3 आवर्स के बाद मतलब कितने घंटे होंगे, ओके, इसको मैं 24 आवर सिस्टम में कैसे कहूंगी, इसको मैं 12 आवर सिस्टम में कैसे कहूंगी। तो ये जो हमारा दिमाग सोच के जो रिएक्ट करता है उसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन। So there is nothing different in that. So what I was suggesting that we go for this statement. ये सारी चीजें दिमाग में रखने की है. It is not of writing and solving. I hope you understand. जो मैं यहाँ समझा रही हूँ, it is more of understanding. तो प्लीज आपके दिमाग में रखना है, सेव करना है, like computer, super computer, isn't it? तो आपको सेव करना है और उसको कभी भी यूटिलाइज करना है. So have a test to look at it. तो मैं कह सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिए हैं. So you could see this some example. So right hand side. So 436 की right hand side पे एक नंबर आ रहा है, that is 469. So I can say 469 is in right hand side of 436. Therefore 469 is greater than 436. Okay. Or how can I say 436 is on the left hand side of 469. Therefore 436 is smaller than 469. Understood? दूसरी चीज, if I look at these 3 numbers, तो भी मैं इस टाइप की स्टेटमेंट कह सकती हूँ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन राइट साइड पे है, कौन लेफ्ट साइड पे है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट बना सकते हैं. दूसरा आपने पढ़ा है बिटवीननेस, isn't it? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 435 is in between 434 and 436. Okay, or
आई कुड से मैंने यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं 433 और 469 के बीच में ये नंबर्स आ भी रहे हैं. I hope that is clear. So this kind of statements are being used and it means the same concept. I hope I'm very clear with this. So we'll go further with this. So now we go further with this. आपने already addition, subtraction, multiplication and division सीखा हुआ है, right? तो अब number line से उस concept को कैसे clear करें वो हम देखेंगे यहाँ पे, right? Thank you for your comments, children. But who is this Shweta saying? Please, I think you're very intelligent child. I don't need you this in the class. So please stop commenting constantly. I request you that please, please, please. यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा हुए हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन थैंकफुली लीव माय क्लास. आई एम रियली सॉरी टू से बट यू आर डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग. चिल्ड्रन, आई हैव टू टेल यू रिपीटेडली सॉरी, बट आप लोग नहीं समझ पा रहे हो. मैं इस क्लास को लाइव लेने का रीजन एक ही है, दैट यू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. जब आप अकेले बैठ के बुक में कोई वीडियो भेज दे और आप पढ़ रहे हो, आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैथ्स के लिए स्पेशली मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रही हूँ दैट यू लर्न द कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. अपने दिमाग को एक जगह पे रखना, कॉन्सेंट्रेट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है ना? अब इसीलिए मैं बहुत आराम से, बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ. Okay, because I have to cater not only 4 or 5 or 6 students, I have to cater all my students. So I request some of the parents or some of the students who feel that their children are or they themselves are very intelligent, I request you, you can leave them and you can go ahead with your own work, please. Because ये दूसरों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. And दूसरे actually, I'm really sorry, I just distracted myself because constant ये 3-4 क्लास से हो रहा है. So please, I request you to pay attention. Let's go with this. अब हम नंबर लाइन से बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. देखिए, आप सब जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. जो 4 बेसिक, क्या कहा था मैंने, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स. ऑपरेशन का मतलब यहाँ कोई हमारी सर्जरी नहीं है, मेडिकल लाइन में अलग मीनिंग होता है. ऑपरेशंस का मतलब होता है 4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पहले सीखे हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नंबर लाइन से हम एडिशन कैसे शो कर सकते हैं. I'll take some smaller numbers only because limitation है, वो छोटा है. So it could be with any numbers you can say. और जनरली जब ये आपके क्वेश्चंस आते हैं कि यूजिंग नंबर लाइन शो, तो इसी तरीके से सिंपल नंबर्स के साथ दिखाया जाता है. तो फर्स्ट आई टेक एडिशन ऑफ होल नंबर्स. So I'll draw the number. I'm sorry. Okay. तो जब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जीरो थोड़ी सी पास लूंगी बिकॉज मुझे थोड़े नंबर्स दिखाने हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I just show few numbers on whole numbers line. मैंने पहले भी बताया, मैंने यहाँ पे जीरो को स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, so I could show this as starting or I could show like this also 0 to 10. दोनों तरीके से सही है because like you know you will be learning new more numbers which will come on the left hand side of 0 later on. ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना है. अब जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे say suppose 2 plus 4. ओके, अब सबको पता है 2 plus 4 क्या होता है. I know everyone knows it is 6, but how to show it with a number line वो मैं आपको बता रही हूँ. तो आपको कहाँ पे जाना है, 2 पे जाना है. ठीक है, और हमें ऐड करना है. जब हमें ऐड करना होता है तो हमें कहाँ जाना होता है, राइट साइड पे मूव करना है. प्लीज रिमेम्बर. तो इसे जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए कि रिप्रेजेंट द एडिशन यूजिंग द नंबर लाइन और शो द एडिशन यूजिंग द नंबर लाइन, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. आपको याद है ना, यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेना है, मतलब कि एक सेम डिस्टेंस आपके साथ लेना है. ओके, एंड वी हैव टू शो दिस एडिशन. जस्ट वन थिंग बिफोर आई कंटिन्यू, मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दी है एंड आई वुड सेंड यू द नोट्स एज सून एज द क्लास गेट्स ओवर. Okay, I have to just do proofreading part, checking क्योंकि कुछ mistake हो जाती है, typing errors, so I don't like, so I'm trying it that I send you always. Already मैंने notes prepare किया, so you don't need to write anything, just understand. तो यहाँ 2 है. Okay,
तो 2+4, तो मुझे यहाँ पे स्किप करना है, मतलब आई विल मूव करना है। कैसे? तो हम 4 बार जाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऊपर जाएंगे 1 2 3 एंड 4। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। So I could just show the arrow कि ये राइट साइड जा रहा है। Okay, so 2+4 you got it as 6। आपको सबको पता है ये चीज, isn't it? तो बट किस तरह से शो करनी है, that's what I was showing here। Okay, जैसे कि मैंने कहा कि 3 + 7। Okay, तो यहाँ से हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। So when we reached, okay, so we started from here and we reached to 10। That's all। Okay, that is for the addition of numbers using the number lines। Similarly, we will go for subtraction। I'll try to use the same number line children। Okay, so this was very difficult है, and as it is I'm not so good with drawing, so straightening करना भी difficult होता है। Now I will go with say 5 minus 2। सिंपल नंबर है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 से। ठीक है, अब इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एडिशन है तो राइट साइड मूव करिए, सब्ट्रैक्शन है तो आप कहाँ मूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल। सो 5 minus 2, तो हम 5 से शुरू करेंगे और -2, तो 2 स्टेप लेफ्ट साइड। सो 1 सॉरी 5 से शुरू करेंगे 1 and 2। सिंपल, isn't it? You could do this easily, isn't it? Easy है काफी। So इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन कर सकते हैं। I hope I'm very clear with this। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन का। ओके, नाउ हाउ कैन वी मल्टीप्लाई? आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आई थिंक क्लास 2 में आपसे पढ़ा है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई इज मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे, आपने कैसे पढ़ा है? इट इज रिपीटेड एडिशन, isn't it? याद आया? इट इज रिपीटेड एडिशन। सो सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ 2 5 ओके, जैसे मैं टेबल मुझे बताना है, नंबर लाइन में मल्टीप्लिकेशन मुझे बताना है, एंड इफ आई हैव टू शो इट समथिंग लाइक 2 5, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? हाउ विल आई शो इट? इट मींस आई हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 2 and I have to move 5 times, and since it is repeated addition, addition मतलब मुझे किस तरफ मूव करना होगा? राइट हैंड साइड मूव करना होगा। So 2 5 so this is first 2, then second, sorry, then third, fourth and 5। Okay, so you could see this 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, and where it reached to 10। समझ में आया? शायद तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलो, जो भी नंबर है, ओके, जो भी नंबर है उसको आप 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पे तो 2 का ग्रुप 5 टाइम्स है। इफ आई से दिस इज 5 2s, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? 5 2s। सिंपल। इफ आई से दिस इज 3 9s, आई एम सॉरी 3 3s, because 3 9s shows very difficult for me to express this। 3 3s, अब 3 3s को शो करने के लिए थ्री थ्रीजा को शो करने के लिए मुझे कितने का ग्रुप करना पड़ेगा? 3 का 3 टाइम्स। सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इजी? यस चिल्ड्रन, गुड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सारी चीजें, इसमें छोटी छोटी चीजें कनेक्टेड है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड अभी भी कह रही हूँ, लिखने में आप जल्दबाजी मत करिए, ये सारी मैंने नोट्स बनानी हुई है। दो इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का भी पीडीएफ आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर ले एक बार। आई नो कि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, पर हम यहाँ जो सीख रहे हैं ना, बेसिक प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी, जो डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो हमें जरूरी है लर्न करनी। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू रीड द टेक्स्ट बुक पार्ट आल्सो, गो थ्रू इट कि किस टर्मिनोलॉजी किस तरह से यूज होती है। एंड आल्सो आई हैव डन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माय नोट्स आल्सो, सो यू कुड यूज दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसके साथ साथ मैंने नोट्स में एक्सरसाइज 2.1 के भी सॉल्यूशंस भेज दिए हैं। ओके, सो यू कुड यूटिलाइज दैट, चेक इट ओके फ्रॉम योर साइड आल्सो। तो अब हम मूव करते हैं आगे, होल नंबर्स पे हैं।
And now we are going to start with properties of whole numbers. ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगेन इट्स मोर थियोरेटिकल पॉइंट, ये सब चीजें आपको पता जरूर है, आपने यूज भी की है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जैसे कहा टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, तो प्लीज याद रखिए। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लर्न करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज क्लोजर, सेकेंड इज कम्यूटेटिव, ये शब्द को याद रखिएगा क्योंकि लोग इसको कम्युनिकेशन बना देते हैं, सो इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज कम्यूटेटिव। Okay, then it is associative, then it is distributive, and one last is identity. Okay, so you can say 1, 2, 3, 4 and 5 properties we are going to discuss here. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है आपको, मतलब जैसे सम दिया हुआ है और ये पूछेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, तो इसलिए आपको इसके स्पेलिंग के साथ नाम भी याद रखना। और दूसरी चीज, इसको अप्लाई करना, जो आप ऑलरेडी करते आए हो, हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है रूटीन क्लासेस में, तो वो चीजें आपको अप्लाई करनी है। और मैंने कहा ना अप्लाई क्यों करनी है, सो दैट अपने कैलकुलेशंस इजीली चले। ओके, तो किस तरीके से करना है लेट्स सी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी पर हमें कितनी बार डिस्कस करनी है, एक प्रॉपर्टी 4 बार। क्यों 4 बार, क्योंकि चारों प्रोसेस करने हैं, चारों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब कि हमें देखना है कि इस चारों ऑपरेशन के टाइम पे क्या होल नंबर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो पहले मैं ले रही हूँ क्लोजर, क्लोजर में भी पहले क्या लेंगे हम, एडिशन, तो जैसे कि हम एडिशन ले रहे हैं। ओके, तो क्लोजर में क्या कहता है, सिंपल, वो कहते हैं कि जब दो नंबर्स को, अब कौन से दो नंबर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, होल नंबर्स, तो वो कह रहे हैं कि जब आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होना चाहिए। मतलब सपोज मैंने लिया 3 होल नंबर है, हाँ, मैंने लिया 4 होल नंबर है, हाँ, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 7, क्या ये होल नंबर है, यस, यू नो 7 इज अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एडिशन इज क्लोज्ड, ओके, फॉर होल नंबर्स, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है। समझ में आया, ओके। अब मैं कहूंगी सब्ट्रैक्शन, सेकंड कौन सा है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो उसी तरीके से जब दो नंबर्स आप लोगे जो होल नंबर्स हो, तो जब सब्ट्रैक्शन करोगे दो नंबर्स के बीच में तो आंसर आपका होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी सपोज मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ, 3 and 4, ओके, तो आप कहोगे 4 minus 3 is 1, यस इट इज अ होल नंबर, 4 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है, isn't it? तो आप सही हो, बट इफ सपोज ऐसे लिखो तो 3 minus 4 is it a whole number, isn't it? तो यहाँ पे होता है कि 3 minus 4 क्या है, नहीं पता, हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें आंसर में होल नंबर नहीं मिल रहा है, एंड नहीं मिल रहा है मतलब ये हुआ कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये फॉलो नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड, लेट्स गो विद द थर्ड प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, मेरी नोट्स में भी डिस्क्राइब किया है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे ना, जैसे ही भेजूंगी वैसे, या तो टेक्स्ट बुक तो ऑलरेडी आपके पास है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो प्लीज जल्दी से रिवाइज कर दोगे तो क्या होगा, दिमाग में सेव हो जाएगा परमानेंटली। फिर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या देखेंगे, जैसे मैं करूंगी 3 and 4, मैं दोनों कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट, 3 4s are 12, say 7 3s are 21, say 5 9s are 45, तो ये सारे जो नंबर्स लिए सारे होल नंबर्स हैं,
उनका आंसर जो है वो भी होल नंबर है। ओके, सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है वो प्रॉपर्टी क्लोजर की फॉलो करता है। अंडरस्टूड। अब लास्ट लेते हैं हमारा डिविजन। तो सेम एग्जांपल यदि मैं लूं, ओके, सपोज मैं लेती हूँ 3 डिवाइड बाय 4, इज इट अ होल नंबर? 3 डिवाइड बाय 4 को आप होल नंबर कहोगे? मैंने आपको पहले ही बताया होल का मतलब क्या है, कंप्लीट, पूर्णता इसमें है, कंप्लीट नंबर है आपका। और जब कंप्लीट नंबर है और ये क्या है, इज इट अ होल नंबर? यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर एंड नेचुरली तो ये होल नंबर नहीं है। 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, but 3 डिवाइड बाय 4 जो है इज नॉट अ होल number, and hence we can say that division is also not followed, यानी कि under closure, और I can say कि division closure property follow नहीं करता है। तो आपने देखा ध्यान से किसने किसने follow की यहाँ पे closure property, addition and multiplication। जनरली मैक्सिमम प्रॉपर्टी फॉलो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में तो जब दो नंबर्स आप होल नंबर्स लोगे, दो होल नंबर्स लोगे तो उसका सम यानी कि ऐड करने पे जो आंसर है वो भी होल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन तो दो नंबर्स, दो होल नंबर्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होगा। तो इन दोनों में हाँ है एंड इसीलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो, और इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। व्हाट इज इट कॉल्ड? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ठीक है, एक सिंपल, यदि क्लासरूम होता तो बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ गए होते। जैसे कि ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर से ही लेंगे टू गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 + 4 कितना होगा? 6। 4 + 2 कितना होगा? 6। ओके, देखते हैं कुछ और। 1 + 9 कितना है? 10। 9 + 1 कितना होगा? 10। तो आप क्या कहोगे, मैम 2 बार करने की जरूरत है ही नहीं, हम 2 + 4 लिखे या 4 + 2 लिखे, आंसर इज सेम, पता है ये। तो दैट इज ओनली द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, answer remains same or answer remains unchanged irrespective of their order। मतलब कि आप दो नंबर्स को इंटरचेंज करोगे तो भी आंसर हमेशा सेम होगा। तो एडिशन में होता ही है। यस, करेक्ट। उसी तरीके से क्या ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगा? लेट्स डू इट। चलिए फिर मैं सब्ट्रैक्शन लेती हूँ। यस, 2 4s are 8, 4 2s are 8, 1 9s are 9, 9 1s are 9। तो यहाँ पे भी ये फॉलो हो रहा है। अभी आपने देखा नंबर लाइन से 2 5s are 10 पे ही पहुंच रहा है, 5 2s are तो भी वो 10 पे ही जा रहा है। सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव, मतलब ये हुआ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो कर ली प्रॉपर्टी। फाइन, तो सपोज आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन पार्ट, आपको ऐसे लिखेंगे, से 19 + 31 इज इक्वल टू 31 + 19, व्हिच प्रॉपर्टी इज फॉलोड? ओके, क्या पूछेंगे आपको, व्हिच प्रॉपर्टी इज फॉलोड? तो आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ज्यादा से ज्यादा आप ये भी ऐड कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अंडरस्टूड? बस इतना ही पूछेंगे, और तो कोई ज्यादा आपको सिंपल इसमें कुछ डिफिकल्ट तो पूछेंगे नहीं। ओके, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 2 - 4 पहले ही हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो होल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 4 - 2 के साथ इक्वल कैसे होगा?
नो, सो इट इज नॉट फॉलोड। उसी तरीके से 2 डिवाइड बाय 4 एंड 4 डिवाइड बाय 2 आर दे सेम? 2 डिवाइड बाय 4 आपको क्या होता है, आपने रिडक्शन किया ना, हाफ एंड 2 अपॉन 1 आर दे सेम? इज हाफ इज सेम एज डबल? No, and hence we can say that division also does not follow commutative property, क्योंकि आपने देखा जैसे मैं 4 डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 अपॉन 1, isn't it? और if I do 2 डिवाइड बाई 4 तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 2। ओके, दे आर नॉट सेम। और बेसिकली दूसरा हमने देखा है कि ये तो होल नंबर ही नहीं है, तो जब वो पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो आगे की प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर सकता। ओके, बेसिक पहले तो ये रूल आना चाहिए कि जो हमारा आंसर है वो क्लोजर होना चाहिए। तो जब क्लोजर में फॉलो नहीं किया मतलब आगे भी फॉलो नहीं होगा। प्लीज रिमेम्बर दिस, क्योंकि इसका आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट में जा रही हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, प्लीज डोंट गेट बोर्ड अप, क्विकली खत्म हो जाएगा। एसोसिएटिव, अब जहां कम्यूटेटिव है वहां एसोसिएटिव होगा ही होगा फॉलो। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, पहले कम्यूटेटिव देख लो। याद आया कम्यूटेटिव क्या है? जब दो नंबर्स को आप ऐड या मल्टीप्लाई करोगे और उसकी प्लेस चेंज करोगे तो उसका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा हाँ कम्यूटेटिव फॉलो हो रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो एसोसिएटिव क्या है, जब दो से ज्यादा नंबर्स भी हुए तो भी ये फॉलो करेगा। मतलब ठीक है, तो जैसे मैं कहूंगी 2 + 3 5 सिंपल, प्लस 4 तो आप क्या कहोगे, 2 + 3 5 5 + 4 9। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, 2 प्लस, पहले 3 + 4 ऐड करना है मुझे, तो 3 + 4 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 7। Okay, so 2 + 7 9. Oh, so that means it is followed for more than 2 numbers also. कि यदि मैं उनको ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ तो भी उनका आंसर सेम आ रहा है। और उसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो से ज्यादा नंबर में जब ये फॉलो होगा कि चेंज करो उसकी प्लेस फिर भी आंसर सेम आए, उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये आपको पता है, आपको एग्जाम्पल अभी बिना एग्जाम्पल से ही आप समझ गए होंगे कि इसी तरीके से यदि मैं मल्टीप्लिकेशन में लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 6 6 4 24। और सपोज ये सेम एग्जाम्पल लो एंड नाउ आई ट्राई दिस फर्स्ट, so this is 2 3 4 12 and 2 12 24, both are equal। I hope that is clear। इसका मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ दो से ज्यादा नंबर मतलब कि 2 और मोर नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड दोनों में फॉलो होगा तो द आंसर रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। जबकि आप इंटरचेंज भी करो उनकी प्लेस तो आंसर सेम रहेगा। तो ये ज्यादा है जो मैक्सिमम हम यूज करने वाले हैं। एंड नाउ क्विकली, ओके, थोड़ा सा ये एक ही साथ है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं 5 मिनट ले रही हूँ एक्स्ट्रा आपसे। ओके, तो अब है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये मैं बाद में ले रही हूँ, आप यहाँ पे रहिए मेरे साथ। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में यूज करने वाले हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट, जो आप सोचते हो उससे अलग है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मतलब क्या, हमारी आइडेंटिटी आइडेंटिकल मतलब कि सेम। जैसे आप मिरर में देखोगे तो इज इट योर ओन आइडेंटिटी, है ना, आप मिरर में क्या देखते हो, खुद को ही देखते हो, सेम टू सेम। तो उसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी के दो कॉन्सेप्ट है और ये किसमें फॉलो होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है जो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, आपने सीखा हुआ है, बस उसको मैं नाम अलग दे रही हूँ, मैं एक नए नाम से बुला रही हूँ, ठीक है ना। ओके, सो जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि आप हो घर में छोटे हो, आप सबसे लाडले हो, तुम दादी के बेटे दादी के पोते हो, मम्मा के बॉय हो या गर्ल हो, मम्मा के बेटे हो, बट जैसे ही आपके घर में कोई छोटा आपसे आ जाता है तो आप क्या हो जाते हो, बड़े भाई हो जाते हो या बड़ी बहन हो जाते हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, आप वही हो, आप नहीं बदले, पर आपका नाम जो बंदा आपको बुलाएगा अलग नाम से बुलाएगा। सपोज आप टीचर के पास आते हो तो आप स्टूडेंट हो गए, तो वैसे आपकी आइडेंटिटी दो इट इज सेम, हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो काइंड ऑफ उसी तरीके से हम करेंगे
तो आपने सीखी हुई चीज है, उसको हम किस तरीके से लेंगे, पहले हम एडिशन के लिए लेंगे। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम ऐड करें तो भी हमें सेम आंसर मिले, जैसे कि समथिंग, तो मुझे 2 ही मिले, 7 सेम ही मिले, समझ गए? यस, यू गॉट इट। ओके, नंबर में क्या ऐड करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। व्हाट इज दैट? Isn't it 0? When you add any number to 0, what do you get? The same number itself, isn't it? Yes. तो 2 में 0 ऐड किया, सेम मिला, 7 में 0 ऐड किया, सेम मिला, 9 में 0 ऐड किया, सेम मिला, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, हम 0 को क्या कहेंगे? 0 is called identity element. Okay, 0 is called identity element for addition. या तो इसका दूसरा नाम क्या है? ओके, 0 को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। हम 0 को क्या कहेंगे? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अंडरस्टूड? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो जैसे मैं आपको पूछूं कि 2 + 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इजी है, बाकी चीजें हमने सीखी हुई है, बस हम उसको अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से सपोज आई मल्टीप्लाई समथिंग टू दिस एंड आई गेट द सेम। अब आपको हिंट मिल चुकी होगी, समथिंग हियर एंड आई गेट द सेम, व्हाट इज दैट? ओके, और उसको हम क्या कहेंगे कि जो भी नंबर यहाँ पे है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कौन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? इज इट 0? यस, इट इज 1, इट्स नॉट 0, बिकॉज़ 0 तो सबको 0 बना देगा, इजंट इट? इट इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थोड़े से मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़े से नाम अलग है तो ये याद रखना है। और एक 0 की स्पेशल प्रॉपर्टी आपको सबको पता है, क्या है? कोई भी नंबर को आप कोई भी नंबर x y z कोई भी नंबर ले लीजिए, यानी सपोज है 255, बड़ा नंबर भी ले लिया, मैंने उसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसने क्या कर दिया? सब कुछ 0 कर दिया। ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप ये समझ में आया हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको गो थ्रू करनी है। एक प्रॉपर्टी बच रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए उसको मैं अभी नहीं ले रही हूँ। सो टुडे वी विल एंड अप आवर सेशन विद ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं कर लूंगी कंटिन्यूस में। तो आपको ये समझना है, पहले तो मैंने आपको समझाया नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की, जिसमें हमने कम्यूटेटिव क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी हम देख चुके हैं, which is followed by addition and multiplication only. ठीक है, डिविजन और सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा आज होमवर्क नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है। तो कल हम मिलेंगे, आई जस्ट शेड्यूल द टाइम एंड लेट यू नो। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी आपके डाउट हो तो आप उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, यू कैन आस्क मी द डाउट। थैंक यू।